Uh, So the next objective was to help clients in investment in mutual funds. Always remember, this can be your practical objective. This can be The your objective maybe differentiate karna hai. Absolutely. The work you did, actually this is fine. ये applicable भी है, थोड़ा सा sentence में twist करना पड़ेगा. To suggest बोलना पड़ेगा, to help नहीं, to suggest. Okay, sir. Right? दोनों में से अच्छा कौन सा है ये समझ में आने के बाद आप suggest कर सकते हो. Right, sir. Right. So to suggest हो जाएगा. एक बात समझो, objectives जो होते हैं, those objectives should break down your title in 3-4 major aspects. Yes. समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? Objective should break down your title in 3-4 major objective based sentences, and objectives always will start from 2. Right? अगर आपने बोला है कि I want to study the customer satisfaction of RIM students, तो मेरे objectives क्या है? To identify whether they are satisfied or not satisfied, to identify what are the factors affecting their satisfaction, to identify what I can do to improve their satisfaction. Right? Yes, sir. So मेरा broader aspect में क्या क्या आने वाले हैं, मेरे broader aspect में मुझे क्या क्या study करना है, वो आपके objective में reflect होना चाहिए. So title will be a broader aspect. Your objective will be something which is breaking down your title into 3, 4, 5 or whatever number you want. Into a sentences which are objective oriented. ये करने से आपका टाइटल जस्टिफाई होने वाला है. Objective means what? By doing those things you will satisfy your title. Right? Yes. So आपका टाइटल क्या था? वो ठीक है. Suggest के बाद anything else? Yes, sir. So the second one is to assist clients in opening their Demat accounts. And your title was related to? Sir, comparative study on mutual. No. When you talk, actually, डीमैट अकाउंट ओपन करना और कंपैरेटिव एनालिसिस करने का कोई रिलेशन नहीं है, राइट? यस सर, यस. डीमैट अकाउंट ओपन करना इज डिफरेंट स्टोरी. यस सर. सो वो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा. हो सकता है बट नॉट इन सिंक विद दिस पर्टिकुलर स्टडी. तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई द बेस्ट इन्वेस्टमेंट सोर्स अमॉन्ग दिस टू, राइट? थ्योरेटिकली अच्छे से फ्रेम कर सकते हो और भी, बट टू आइडेंटिफाई विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, to study the trends in both of the things since 5 years. ऐसे कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे which are breaking down your title in small things. Okay. And sir, the last one was to study how to build portfolio of clients based on their investment. Actually, you have mixed up these two things together. You have tried to mix up portfolio management भी आ गया and mutual fund भी आ गया. Your financial study and your marketing study, ये दो चीजें आपने मिक्स कर दिया है. Right? Sir, I'll remove these 2 points. Demat वाला अपग्रेड करो, उसके थियोरेटिकल बेसिस पे समझो. मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसको आपने कॉन्सेप्ट में कैसे उतारना है उस लेवल पे समझो, आपको आ जाएगा. ओके सर, ओके सर. टाइटल तो मुझे अभी ऐसा लगता है टाइटल सब लोगों का आज अभी के अभी इसी सेशन में फाइनल होना चाहिए इन योर माइंड. कोई है इस क्लास में 20-30 लोगों में से जिसको टाइटल समझ में नहीं आया, जिसको कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं मेरा टाइटल कर पाऊंगा? इज देयर एनीवन हु इज इनकॉन्फिडेंट? कोई कमतरता नहीं, कोई कमपना नहीं उसमें, बोल सकते हो आप. अगर किसी को लगता है कि मुझे अभी भी पता नहीं कि टाइटल कैसे करना है, आप मुझे बताओ, मैं अभी बता देता हूं आपको तुरंत सोल्यूशन. एनीवन? तो टाइटल तो आपको अभी के अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में स्टडी करनी है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू स्टडी, एंड यू विल फ्रेम अ ब्रॉडर सेंटेंस अबाउट दैट थिंग, एंड दैट विल बी योर टाइटल. एंड दो if you give something on certificate as a title, I will suggest you to study that thing only. No need to change. आपको इतना बड़ा चेंज करके, मतलब चेंज करने से आप कोई एकदम इफेक्टिव चीज लेके नहीं आने वाले हो. चेंज करोगे भी तो वही होने वाला है, नहीं करोगे भी तो वही होने वाला है. सो चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है. एक अच्छा सा ब्रॉड सेंटेंस which is suitable to your interest areas, your company profile, your business and your expertise in the field of finance. ये चार को कंबाइन करके एक अच्छा सा सेंटेंस बनाओ, ब्रॉडर स्टेटमेंट बनाओ, एंड वो दैट स्टेटमेंट विल बी योर टाइटल. बहुत बार क्या होता है,
आई हैव सीन फ्यू ऑफ द पीपल गिविंग टाइटल। टाइटल पता है कैसे कैसे आते हैं हमको? अगर हम कोई गूगल फॉर्म सर्कुलेट करते हैं, टाइटल कैसे आता है? म्यूचुअल फंड। टाइटल क्या है टॉपिक का? म्यूचुअल फंड। टाइटल क्या है टॉपिक का? इंश्योरेंस एजेंसी, इंश्योरेंस पॉलिसीज। ऐसे भी कंज्यूमर बिहेवियर, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, कंज्यूमर बिहेवियर। This kind of titles we get into the Google form. This is what not called a title. Title is a broad statement talking about your entire research theme. किसी को रिसर्च नहीं करना है तो एंटायर स्टडी थीम, जो भी स्टडी आप कर रहे हो उसका थीम को जो ब्रॉड में बताएगा वो टाइटल है। जनरली टाइटल्स विल स्टार्ट बाय अ सेंटेंस कॉल्ड अ स्टडी ऑन XYZ डैश डैश डैश। टाइटल कैसे शुरू होगा? अ स्टडी ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड एट XYZ कंपनी। ऐसा टाइटल होगा। somebody's title could be like a study on comparative analysis of financial performance of two companies, a study on working capital of that company, a study on ratio analysis of that company। आपको और क्या क्या पढ़ा गया है? बैलेंस शीट तो सबको आती है, राइट? Yes, स्टडी sir. ऑन बैलेंस शीट एनालिसिस ऑफ XYZ कंपनी। करो एनालिसिस बैलेंस शीट का, फाइंड आउट ये कंपनी लिक्विडिटी कब करने वाला है, कितना प्रॉफिट में जाएगा, इसका फ्यूचर क्या है, ट्रेंड क्या है, हिस्ट्री क्या था। डू दैट फॉर 5 years। So title should always start from a word called study on. Objective will always start from the word called to study, right? Yes, sir. Any other question? Any other question? Yes, Hardeep. सर टाइटल क्लैश हो रहे हैं, लाइक बहुत सारे टाइटल क्लैश होना ही नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। क्यों होगा टाइटल क्लैश? इज इट लाइक इफ यू लाइक टू स्टडी द बैलेंस शीट, इज इट लाइक सृष्टि also would like to study the balance sheet? It is your interest। लॉजिकली ये होना ही नहीं चाहिए। सुनो, लॉजिक अगर लगाओगे ना, आप एक कंपनी में भी काम करो, एक प्रोफाइल में भी काम करो, इंटरेस्ट तो सबका अलग अलग है ना, चॉइस तो सबकी अलग अलग है, एक्सपर्टीज तो सबकी अलग अलग है। तो लॉजिक अगर लगाओगे तो टाइटल क्लैश होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई कॉपी करने जाएगा तो पक्का हो जाएगा, तो वो होना ही नहीं चाहिए, ओरिजिनल काम करोगे तो। सर लाइक पहले मैंने डिसाइड किया था कि आईटी सेक्टर का एनालिसिस करना, पर लाइक क्यों करना आईटी सेक्टर का? तुमने काम किया है जिस सेक्टर में उसमें ही करो। और एक चीज मुझे आप लोगों को बताने दो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि आपके इंटर्नशिप वर्चुअल हुए, अच्छा नहीं हुआ, कंपनी में जाके ये हुआ, अगर फिजिकल में करते तो सीखने को मिलता। लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स क्लियरली। देयर इज नो रेड कारपेट फॉर एनी कॉर्पोरेट पर्सन, एनी एम्प्लॉय इन द कंपनी। किसी भी लेवल का कोई भी बंदा हो, कंपनी में रेड कारपेट आपके लिए नहीं है। तो समर इंटर्नशिप फिजिकल करने से वर्चुअल करने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग्स। हाँ, फिजिकल करने से कुछ फर्क ये पड़ता था कि आप लोग जाके कंपनी के कुछ फैसिलिटीज यूज कर सकते थे, लाइक टी कॉफी वेंडिंग मशीन्स, लाइक यू मस्ट हैव एंजॉयड द प्रीमाइसेस, यू मस्ट हैव एंजॉयड द कैजुअल डिस्कशंस विद फ्यू पीपल। तो सोशल एस्पेक्ट में फर्क पड़ता है, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? समर इंटर्नशिप में फॉर यू हु आर द पीपल, फॉर यू सॉरी फॉर कंपनी हु यू आर इन द समर इंटर्नशिप, उनके ऑफिस में आप लोग कौन है? 2 महीने के लिए टाइम पास करने के लिए आए कॉलेज ग्रेजुएट से, दैट दे आल्सो नो वेरी वेल। तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपको हाथ पकड़ के सिखाएंगे, दैट टू इफ द पर्सन इज वेरी विथ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड। अभी आजकल बहुत कम लोग रहे वैसे। आजकल अगर आपको समर इंटर्नशिप, चलो लेट्स सपोज आपको रेलिगेयर में मिल गया शेयर मार्केट का समर इंटर्नशिप, आप ऑफिस में जाके क्या करने वाले थे? जो आपने ये किया वो वहां से करवाते थे। और वहां जाने के बाद आपको क्या लगता है? सब लोग आपके पास आके आपको बताने वाले थे ऐसा फोन करते हैं, ऐसी बात करते हैं, ऐसा करते।
उनका उनका टारगेट नहीं हो रहा है, वो आपको क्या बताएंगे? सो देर इज नो डिफरेंस डूइंग समर इंटर्नशिप वर्चुअली एंड डूइंग समर इंटर्नशिप फिजिकली। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं तो बोलता हूं इट इज बेटर दैट यू आर डूइंग इट फ्रॉम होम। फिर थोड़ा बहुत सोशल एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस का एडवांटेज हो गया होता, मैं पूरा डिनाई भी नहीं करूंगा, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू अ नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल। आपके नॉलेज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला उसका, राइट? हाँ जरूर, यू माइट हैव गॉट फ्यू अपॉर्चुनिटीज टू एंटरटेन, टू हैंग आउट विद द पीपल, या फिर टू एंजॉय द कंपनी ऑफ पीपल, इतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं, राइट? दूसरी चीज, most of you are thinking that your internships are in very small company, in startup company, in not in your profile. Always remember the cross-sectional approach of your learning is appreciated a lot in the industry. आप अगर HR हो और आपने फाइनेंस का इंटर्नशिप किया है, HR तो बाय डिफॉल्ट यू आर लर्निंग ना, राइट? आपका HR का नॉलेज जस्टिफाई करने के लिए आपको HR की इंटर्नशिप करना जरूरी है क्या? दैट यू आर डूइंग बाय 10 सब्जेक्ट्स इन एग्जामिनेशन, दैट यू आर डूइंग बाय ऑल द थियोरेटिकल पॉइंट्स. सो क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, आई विल टू से दैट, मैं तो ये बोलूंगा कि फाइनेंस के लोगों ने मार्केटिंग का इंटर्नशिप करना और उसके ऊपर एक अच्छा अप्लाइड रिसर्च करना इज नेवर अ बैड डील और इज नेवर समथिंग स्ट्रेंज. तो इट इज यू हु जस्टिफाई योर वर्क, इट इज यू, इट इज योर कॉन्फिडेंस. आप क्या करते हो, आप क्यों करते हो, ये सामने वाले के दिमाग में उतारना आना चाहिए आपको. दैट इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ गुड मैनेजर. सही करते हो गलत करते हो डजंट मैटर, मैं तो बोलता हूं गलती करो, उसको सही प्रूफ करने का एबिलिटी आप में होना चाहिए. गलत करो, बीइंग अ फाइनेंस पर्सन, मेक अ मार्केटिंग रिपोर्ट, समर इंटर्नशिप ऑन द सेल्स प्रोसेस ऑफ डीमैट अकाउंट्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स डीमैट अकाउंट एंड प्रूव इट कि why it is necessary for a finance person to study this aspect. How can you prove? Without understanding what is the consumer behavior or what is the factor affecting consumer behavior into this demat account opening industry, how would you become a good portfolio analyst? How would you become a person who knows how to deal with the queries of customers in share trading industry, share broking industry? So it is about you guys, how you justify those things. It is about you. University never says that कि आपको किस डोमेन में करना चाहिए, किस सब्जेक्ट में करना चाहिए, किस स्पेशलाइजेशन में करना चाहिए. University has given you full freedom to move from this domain to that domain. But still if you feel that being a finance person you have to talk, relate, and इंटरव्यू में भी आप जस्टिफाई कर सकते हो ना. जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर मुझे पता ही नहीं मेरा कस्टमर क्या सोचता है तो मैं क्या उसका पोर्टफोलियो बनाऊंगा. इसलिए मैंने कस्टमर बिहेवियर समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा. पोर्टफोलियो एनालिसिस तो मुझे वैसे भी आता है. आई एम गुड इन टेक्निकल थिंग्स इन द फाइनेंशियल टर्म्स. सो आई थॉट टू लर्न समथिंग न्यू एडिशनल विच इज related to this field but not a financial term. So my summer internship was justifying my efforts done. आ रहा है कुछ दिमाग में? Yes. Right. So there is a saying by Ratan Ji Tata. He says, take a decision then make it right. अब हो ही गया है ना, अब हो गई आपकी इंटर्नशिप, डिसीजन तो हो गया. अब वो सही हुई है गलत हुई है, who knows that thing? It is you who can project it. आप उसको अच्छे प्रोजेक्ट करोगे तो वो अच्छा है, अगर आप उसको बुरा प्रोजेक्ट करोगे तो वो बुरा है. It is you who are going to sell that particular thing, isn't it? जो हुआ सो वो हुआ. और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, वर्चुअल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है. वन ऑफ माई फ्रेंड इज रनिंग NGO in Pune. You know, one of my friend is running NGO in Pune. मिट्टी के रंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन है. मिट्टी के रंग
राइट, चाहे तो कभी देख लेना। जब वो अब बहुत अच्छे लेवल पे गया है वो ऑर्गेनाइजेशन, पहले छोटा था। जब वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था तब लाइक आई वाज डिस्कसिंग विथ हिम कि ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कैसे करे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या हो। ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ मैं, मुझे यहाँ मेरा काम बताने की इच्छा नहीं है, मैं आपको गाइडलाइंस देने के लिए आया हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे किया जाए इसको, ब्रॉडर कैसे किया जाए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैसे बनाए, या फिर और कुछ बिजनेस डेवलपमेंट कैसा किया जाए। तो मैंने बोला उसको एक काम करो, इंटर्न्स हायर करते हैं और इंटर्न्स हायर करके इसका ब्रांडिंग करते हैं और स्पेशलाइजेशन वाइज 5-5, 10-10 लोगों को काम में लगाएंगे, राइट। तो इट वाज जस्ट बिगिनिंग, स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने एक इंटर्न हायर किया एंड दैट इंटर्न वाज हायर्ड फ्रॉम IIM कोलकाता। और वो हायर कैसे किया, इसने कभी जाके उसको बोला नहीं कि तुम आ जाओ मेरे पास, वो इंटर्न खुद ही आए उनके पास। इट हैज बीन जस्ट अ वर्चुअल अपील टू ज्वाइन, राइट, इट हैज बीन जस्ट अ वर्चुअल अपील टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो जो लड़की थी IIM से आके ज्वाइन किया था, उसने ये बिजनेस का पूरा डायमेंशन ही चेंज कर दिया। सो इट इज यू हु मेक्स डिफरेंस। अगर आप में पोटेंशियल है, क्वालिटी है, आप सही में करना चाहते हो, तो डजेंट मैटर कि कंपनी क्या है और साइज क्या है और उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उसका ब्रांड क्या है, ये सब चीजें टाइम पास है। इज इट लाइक ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेट इनटू MNCs ओनली? इंडिया में 10 लाख लोग MBA कर रहे होंगे, 4-5 लाख लोग तो आराम से कर रहे होंगे। सबको MNC में जॉब मिलने वाला है क्या? एंड व्हाई डू यू एक्सपेक्ट? स्टार्टअप्स कौन चलाएगा? MSMEs को कौन आगे लेके जाएगा? इज इट द जॉब ऑफ इलिटरेट पीपल टू टेक देम अहेड? तो क्या सही है क्या गलत है, इसमें पढ़ के अपने दिमाग को उल्टे काम में मत लटका दो यार। इट इज, मुझे बहुत कभी कभी ऑड फील होता है, बच्चे कुछ भी बोलते हैं, पीपल कम सर मेरा कंपनी तो मुझे कॉपी पेस्ट पे ही लगाया है। अरे तेरे कंपनी ने तुझे कॉपी पेस्ट पे लगा के कम से कम 2 महीने का इंटर्नशिप दे के सर्टिफिकेट तो दिया, तो वो कॉपी पेस्ट में से तुम अच्छा क्या निकल सकता है वो बताओ ना। Why don't you get some creative things, creative thoughts out of that? Why don't you create something good out of that? कॉपी पेस्ट में क्या आपको लगता है क्रिएशन ऑफ डाटाबेसेस के टाइम पास? डेटा के साथ खेलना सीखो ना, राइट। तो ये आपके ऊपर है, इसको कभी स्पून फीडिंग के नजर से मत देखो। कोई आके आपको बताएगा कि आपका टाइटल सही है गलत है। व्हाई डोंट यू डिसाइड योर टाइटल एंड व्हाई डोंट यू टेल दैट कि ये टाइटल ही सही है, और कैसे है जस्टिफाई करो। दैट इज द स्टूडेंट्स एटीट्यूड एट मास्टर्स लेवल। ये कोई 5th या 6th स्टैंडर्ड का क्लास नहीं है मैडम को जाके दिखाना है मैडम ये मैंने किया अच्छा है क्या। यू नेवर नीड अप्रूवल ऑफ, यू शुड नेवर रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ पीपल। खुद करो और जस्टिफाई करो, ये मैंने किया है, ये अच्छा है, ये ऐसा है, यही सही है और ये है, यही सही है। एंड अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछता है तो यू शुड हैव द एबिलिटी टू आंसर दैट। उसके लिए फिर गट्स चाहिए, गट्स के लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए स्टडी करना पड़ेगा। मतलब मैंने अब तक जो सत्संग किया उसका कोई मतलब नहीं है। एनी क्वेरी? हेलो sir. Yes. Any question, any query, any doubt? How to frame title, objectives, how to select? सबसे पहले अंडरस्टैंड एरिया ऑफ स्टडी, कि मुझे कौन से एरिया में स्टडी करनी है। रिमेंबर, बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, अगर आप एक एरिया लेके उसके ऊपर 50 पेज का प्रोजेक्ट बना नहीं पाते हो तो फिर मैं क्या ही बोलूं अभी आगे। और ऐसा नहीं कि आपको, मुझे तो ये बात नहीं समझ में नहीं आती कि डाउट्स क्यों है आपको, खुद के ऊपर डाउट्स क्यों है। व्हाई आर यू नॉट कॉन्फिडेंट? खुद के ऊपर डाउट्स क्यों है पता है? क्योंकि थ्योरी पढ़ा नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो बोल रहे होंगे सर हाँ कर ही लेंगे, उनके दिमाग में अभी चल रहा होगा कि हाँ हम तो देख लेंगे, कर लेंगे, मैं इस पॉइंट पे ही कर लूंगा। जिन्होंने सही में पढ़ा है
जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, लेक्चर अटेंड नहीं किए, टाइम पास के लिए आए, लॉगिन करके चले गए, उन लोग सोचते होंगे साला ये तो रोज उठ के कोई तो आके बकता है, इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर जैसे बड़बड़ कर रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। वो तो फिर अभी वो जुगाड़ में लगेगा, अरे इतना करते कौन बैठेगा, मैं तो पेपर प्रोजेक्ट उठा के छाप दूंगा। ऐसे भी होते हैं रति महारथी, राइट। और इफ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर अंडर मी फॉर समर इंटर्नशिप, मैं एक सेकेंड में पहचान जाऊंगा ये प्रोजेक्ट कॉपी पेस्टेड है या फिर नॉट मोर देन रीडिंग वन पेज, और आई नो वेदर इट इज अ जेन्युइन वर्क और इट्स अ कॉपी पेस्टेड वर्क। तो उससे तो आप संभल के ही रहो। बेटर you do your own work. I am okay if you make some mistakes. I am okay if you do not reach to a great conclusion. मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बनाओ या फिर बहुत ही समाज को चेंज करने वाले रिपोर्ट बनाओ। नो, आई वॉन्ट यू टू स्टडी माइक्रो फैक्टर्स। गेटिंग माई पॉइंट? कोई बोल ही नहीं रहे। ज्यादा ज्यादा बोल दिया क्या मैं? नो सर, वी आर All of you, who are these? प्रज्वल, रवि, रिदम, ऋषिकेश, सयानी, शौर्य, पता नहीं नाम दिख रहे हैं बस, कभी देखा ही नहीं मैंने आप लोगों को। देखो, मैंने ऑनेस्टली मेरे दिमाग में जितना था बोल दिया। मुझे अभी भी ये लगता है, हाँ, बीइंग अ स्टूडेंट, जब मैं आपके लेवल पे था तो मुझे भी कुछ पता नहीं था कि टाइटल कैसे करता है, उतनी ही कंफ्यूजन मेरे माइंड में थे। बट जो मैंने आपको बताया वो मुझे किसी ने नहीं बताया। क्या है? जो मैंने आपको अभी बताया आधे घंटे से चिल्ला चिल्ला के, वो मुझे किसी ने नहीं बताया। और मुझे आज ऐसा लगता है कि अगर ये क्लैरिटी मुझे उस टाइम मिल गई होती तो मुझे क्वेश्चन नहीं रहती। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट आपको क्वेश्चन ना रहे। और यू कैन डेफिनेटली डिस्कस विथ योर फैकल्टीज कि सर ये टाइटल फ्रेम किया है, आपको कैसा लगता है, राइट? बट डू नॉट कम विद द क्वेश्चन सेइंग दैट टाइटल कैसे फ्रेम करूं, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाऊं। अब वहीं से शुरू करना है तो इसका मतलब भी फिर आपको बीआरएम पढ़ा के क्या मतलब है सेमेस्टर 1 में पूरा का पूरा 50 लेक्चर? या फिर आपकी सेल्फ स्टडी क्या है? इज देयर नो एनी अदर सोर्स बाय विच यू कैन नो हाउ टू फ्रेम ऑब्जेक्टिव और टाइटल? दिस इंटरनेट इज द बिगेस्ट सोर्स ना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछो जी, आप किस क्वालिटी का क्वेश्चन पूछते हो उससे आपकी क्वालिटी डिसाइड होती है, राइट? अगर आप एक्सपेक्ट करते हो स्पून फीडिंग, हमको पता चल जाता है यार, वी आर फैकल्टी, वी नो दैट कि आप क्या इंटेंशन लेके आए हो। आप अगर क्वेश्चन पूछने आ जाओ तो ना, सर मैं ऑब्जेक्टिव फ्रेम नहीं हो पा रहा है सर, मैं क्या करूं, मेरे ऑब्जेक्टिव ही नहीं बन रहा है। हमको समझ में आता है तुमने कुछ नहीं किया, यू वांट मी टू फ्रेम ऑब्जेक्टिव फॉर यू, तो हम कभी नहीं करते। मैं नहीं करता हूँ इंडिविजुअली, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट देयर टू वर्क फॉर यू, आई एम देयर टू वर्क विथ यू। आई विल लेट यू नो हाउ टू वर्क, इट इज योर जॉब हाउ टू डू, राइट? सो जब डिस्कस करने आते हो, अवेलेबिलिटी का तो बात ही नहीं है, मुझे कभी भी फोन करो, आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। अनफॉर्चुनेटली nobody does the calls and nobody takes consultation, very few people. There are couple of people those who does that, so these are exceptions. बाकी को रेडीमेड चाहिए, आई एम सॉरी। Any other query? Any other, like session was for SIP guidelines, any other guideline you want? हेलो, बोलते हैं क्या ही बोल गए पता नहीं। No, sir. No guidelines required? Okay. So by what time you can tell me the title for all of you? Should I share Google form to you right now and you will give me it in a evening time, by evening? Yes, sir. आज के आज सब लोगों का छोड़ दिया मीटिंग, 17, 16, 15? Sir, what about the student who haven't got internship yet? हाँ, see, as per the syllabus, again, the solution is there in syllabus, right? You can do a self dissertation report, right? आप क्या करो, dissertation report बनाओ, similar kind of things, similar kind of report, but not mentioning any company. Okay, sir. And try to get the internship in that company
फॉर जस्ट सर्टिफिकेशन वर्क, राइट। फिर ट्राई करते रहो, मिल गया तो जब भी पॉसिबल है सर्टिफिकेट लगा देंगे, नहीं मिल गया तो इट विल बी एट योर ओन, तो आप खुद का रिपोर्ट बनाओ। ओके सर, थैंक यू। राइट, सो रिपोर्ट बनाने का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, ये सब चीजें वही रहेगी, सिर्फ यू विल नॉट हैव, डिफरेंस इज ओनली वन थिंग, योर रिपोर्ट इज नॉट डन इन एनी कंपनी, यू डिड इट एट योर ओन, बट objective of your reports are similar, to study few financial phenomena of the organization. तो satisfaction तो है, it is satisfying academic requirement. एक ही कमी है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए था, वो आप खुद पे किया, but doesn't matter a lot because of this COVID situation. Everybody knows you cannot go into the companies and find out, right? And अगर आपको लगता है कि आपको आपके रेफरेंस से या फिर आपका इंटरेस्ट इंडस्ट्री कोई है, मैन्युफैक्चरिंग हो, सीमेंट हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, आपको मिल सकता है इंटर्नशिप उस इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री को ही सिलेक्ट करके रिपोर्ट बनाओ, सो दैट जब भी मिलेगा, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप जाके उनको रिपोर्ट दिखा सकते हो कि मैंने ये स्टडी किया था, दिस आई सबमिट यू कॉपी एंड यू कंसीडर मी एज योर इंटर्न एंड गिव मी अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ यू फॉर फ्यू डेज एंड यू कैन कंपाइल द सर्टिफिकेशन वर्क, अब पॉसिबल है तो। ओके, any more thing, any other thing? मुझे एक बात बहुत ऑड लगती है, यू नो, आप लोग बात नहीं करते, नॉट इन सेशंस, नोवेयर। जब तक बात नहीं होता है ना, क्लास में होता तो अलग ही सीन होता, पता नहीं, बट जब तक आप बात नहीं करते हो तो this outcome, quality of the discussion doesn't increase, you know. There should be always a person who asks the questions. हमेशा क्वेश्चन पूछने वाले लोग चाहिए, और क्वेश्चंस आने ही चाहिए, तभी आंसर्स आएंगे। आंसर्स आएंगे तो अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो सामने वाला कोई होगा जो उसको करेक्ट करेगा, तो क्वालिटी ऑफ डिस्कशन विल गो अप विद द कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पूछना या क्रॉस करना या फैकल्टी को क्रॉस करना इज नॉट समथिंग, बट इंटेंशन राइट होना चाहिए, राइट? Intentionally it should be a good thing, but cross and debates are very much required. Should I stop here then? Okay sir. Okay, sir. Thank you so much. I think you must have got something. All the best to you all. Take care. Have a nice day. Thank you sir. Thank you, sir.